Okay, so let's begin. We'll start with a quick revision. So देखो हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है. We have discussed about unit cell, ठीक है, crystal structure. Apart from that हमने डिस्कस किया there are 7 crystal systems. बताओ क्या क्या crystal systems है. बताओ what all are the crystal systems. Correct, one is cubic. इसके अलावा फटाफट, one is cubic, tetragonal, very good, orthorhombic, correct, hexagonal, correct. इसके अलावा मोनोक्लिनिक, करेक्ट, और 2-3 बचे हैं, या शायद और एक ही बचा है, ट्राइक्लिनिक, एंड शायद एक और बचा है क्या. सो क्यूबिक, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल. ठीक है, रोम्बोहेड्रल. So these are all the crystal system. Crystal system का मतलब क्या होता है? That is the basic structure. Okay, that is the basic shape of the crystal. Trigonal is same as rhombohedral. Anyways, इसके अलावा देखो we have also discussed the lattices. ठीक है, lattice में क्या क्या डिस्कस किया? Simple cubic, also called as primitive. Then you have face-centered. Then you have face-centered. इसके अलावा you have your body-centered. इसके अलावा you have your end-centered. जो हमारे सिलेबस में है that is mostly your simple cubic system. Simple cubic में आपके 3 lattice exist करते हैं. Simple cubic, body-centered cubic and face-centered cubic. ठीक है, क्या cubic system में क्या? Yes, crystal system cubic. Crystal system में सारे unit cells cubic ही होंगे. ठीक है. Now apart from that we have discussed many other properties such as the relation between A and R. R is your radius of atoms. We have discussed relations between A and R for all of these. बताओ for simple cubic, ठीक है, for simple cubic what is the relation between A and R? Correct. For simple cubic the relation is A is equal to 2R. ठीक है, what is the relation between A and R in case of body centered? Correct. So in case of body centered the relation is A root 3 is equal to 4R. ठीक है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो. आप A root 3 is equal to 4R लिख सकते हो. आप A root 3 by 2 is equal to 2R लिख सकते हो. Or you can write it in any other manner. Okay, what is the relation in case of face centered? In case of face centered the relation is A root 2 is equal to 4R. सभी को ध्यान में आ रहा है? Okay. Apart from that we had discussed कि कोई भी एक लैटिस साइट जो है वो एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितना कंट्रीब्यूट करता है. Okay, so if we take for example a lattice point which is present in the corner. अब अगर एक लैटिस पॉइंट कॉर्नर में प्रेजेंट है तो वो एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितना कंट्रीब्यूट करता है? करेक्ट, वो एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली 1/8 कंट्रीब्यूट करता है. ओके, इफ वी टेक एन एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन द फेस सेंटर, हाउ मच डज दैट इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट? Correct. So that effectively contributes half. If it is present at edge center, how much will it contribute? Correct. Edge center के केस में an edge is shared between 4 unit cells, so it contributes 1/4. And if it is present at the body center, in that case it contributes. Correct. In that case it contributes 1. Apart from that, we had also discussed one more characteristic, that is Z. Z is your unit cell content. कि effectively एक unit cell में कितने molecules या कितने atoms है, right? So what is the value of Z in case of body centered? In case of body centered the value of Z was, correct, in case of body centered the value of Z was 2. Okay, what is the value of Z in case of face centered? Face centered में आपका आएगा 4. What is the value of Z in case of simple cubic or primitive? Correct, simple cubic और primitive में आपका आता है 1. I believe आप सभी को यहाँ तक जो है वो याद आ ही रहा है. After that we had discussed packing fraction. Packing fraction हमने क्या डिस्कस किया? Packing fraction is basically कितना, yes, coordination number also. Okay, so we'll first discuss coordination number. Now coordination number और nearest neighbors का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक atom कितने और atoms के साथ directly in contact में है. Okay, so if we take the example of let's say simple cubic, what is the coordination number? Simple cubic में correct आपका coordination number जो है वो आता है 6.
What is the coordination number in case of face centered? Correct. Face centered case में it is 12. What is the coordination number in case of body centered? In case of body centered, it is 8. Okay. After that, we had discussed. Your packing fraction. Now, what is the value of packing fraction in fraction? ठीक है, आपको fraction में value बता रहा है of let's say body centered. बताओ body centered का कितना आएगा? अच्छा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, राइट? सो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था. चलो ठीक, इसका वैल्यू तो मैं अभी देखता हूँ. करेक्ट. सो बॉडी सेंटर के केस में जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आया था, दैट वाज 0.68. ठीक है, दैट वाज 0.68. ओके. जो आपका सिंपल क्यूबिक था, वहां पे वैल्यू क्या आया था बताओ? दैट वाज करेक्ट, दैट वाज 0.52. एंड जो आपका फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर के केस में आपका पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आया बताओ? अप्रोक्सीमेटली. करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 0.74. Okay, approximately आपका आएगा 0.74. We can look at the calculation. देखो, not difficult at all. So packing fraction is same आपका Z into volume of one atom divided by volume of cube. तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? Yes, आपको ये values याद रखने हैं. ठीक है, आपको ये decimal values जो है वो याद रखने हैं. तो यहाँ पे देखो आपका आएगा 4 into 4 by 3 pi r cube divided by a cube होगा. मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे a cube होगा, बट a क्यूब के जगह मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 4r बाई रूट 2 का क्यूब. ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो आपका क्या एक्सप्रेशन आएगा. 1 सेकेंड. सो 8 इंटू 2 रूट 2, 16 रूट 2, 16. सो ये आपका आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 64 4 रूट 2 बाई 3 आ रहा है क्या? रूट 2 बाई 3 पाई. नहीं, कुछ मिसिंग है. एक सेकेंड रुको, कुछ मिसिंग है शायद. इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा. 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब बाई 3. अच्छा, 3 बाई रूट 2. चलो अभी देख लेते हैं ना. फेस सेंटर्ड है ना ये. हाँ ठीक है, तो 4r बाई रूट 2 आएगा. सो ये आपका कितना आ रहा है? इंटू 64, यहाँ पे 2 रूट 2 का क्यूब. ओके, तो यहाँ पे आपका 2 रूट 2 आएगा. अच्छा, मैंने यहाँ मिस्टेक किया. ओके, सो दिस इज 32, तो ये आपका आएगा 2 बाई 6. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई बाई 3 रूट 2. ठीक है. Anyways, so looking at the values of packing fraction, बताओ सबसे ज्यादा इफेक्टिवली कौन सा पैक्ड है? यहाँ पे 0.52, यहाँ पे 0.66, यहाँ पे 0.74. तो मोस्ट इफेक्टिवली या मोस्ट डेंसली कौन सा पैक्ड है बताओ? ठीक है, तो ये जो है, ये आपका फेस सेंटर्ड जो है वो आपका मोस्ट इफेक्टिवली पैक्ड आ गया. क्या ये सभी को क्लियर हुआ? ओके. इसके अलावा नाउ वी हैव टू डिस्कस वन मोर टर्म, दैट इज योर डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी का देखो बहुत ही सीधा सीधा सही है. यस, आपको ये सब याद रखना है. यस, रिमेंबर दिस. ठीक है, नाउ देखो, क्या फेस सेंटर, क्या इसका पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम है ना, तो इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है ना. ठीक है, नाउ ध्यान दो, वी आल्सो हैव टू रिमेंबर वन मोर फॉर्मूला, दैट इज ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी का देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. यस और नो? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो देखो मेरा वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम तो बेसिकली मेरा क्यूब ही हुआ, तो मेरा वॉल्यूम क्या आएगा? ए क्यूब ही आएगा. यस, नो? वॉल्यूम तो मेरा ए क्यूब ही आएगा. नाउ सपोज करो कि आपको कोई भी एक कंपाउंड दिया गया जिसका कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो m है. मॉलिक्यूलर मास जो है वो m है, तो एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा बताओ? इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज m या इट्स मोलर मास इज m, तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा? वेरी गुड, आपका वेरी सिंपली ये चीज m by Na आ जाएगा. ठीक है, दिस इज मास ऑफ वन एटम्स.
सॉरी, दिस इज मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो भी आपको दिया हुआ रहेगा। नाउ अब एक यूनिट सेल में, जो कि कोई भी यूनिट सेल हो सकता है, वो सिंपल क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, या बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, उसमें कितने एटम्स होते हैं बताओ। हमने जैसे भी डिस्कस किया, हाउ मेनी एटम्स, हम उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट, वी रिप्रेजेंट इट बाय जेड। ठीक है, तो कोई भी एक यूनिट सेल में जो मास है, वो मास कहां से आएगा, वो नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम से आएगा। यस नो, देखो देखो एक और बार देखो, जिसको समझ में नहीं आया। डेंसिटी क्या होता है आपका, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या है आपका, डेंसिटी इज वेरी सिंपली योर मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो क्यूब का मेरा फिक्स्ड है। ठीक है, वॉल्यूम तो क्यूब का मेरा फिक्स्ड है, तो इसको मैंने ए क्यूब डाल दिया। नाउ मास कहां से आएगा, मास तो ऑब्वियसली वो एटम्स के वेट से आएगा। ठीक है, तो एक एटम का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय Na। यस नो, एक एटम का मास जो होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय Na आएगा। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि अगर मेरे पास सिंपल क्यूबिक है तो Z मेरा ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, अगर फेस सेंटर्ड है तो वो ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या आता है, देखो, सो मास इज Z इनटू मॉलिक्यूलर मास बाय Na। देखो, तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय Na इनटू A क्यूब। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पे इंटू लिख सकते हो, कॉपी कर लो। समझ में आया सभी को। कॉपी कर लो। एम बाई है ना, एम है ये, दिस इज एम। मास ऑफ, देखो, 1 मोल का मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास, तो 1 एटम का मास कितना आएगा, एम बाई एन आएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर ना। कहां पे, Z इंटू मॉलिक्यूलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब, Z इंटू मॉलिक्यूलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, इज दिस क्लियर। वी कैन नॉट यूज सो मच टाइम जस्ट डूइंग दिस। ठीक है, हमें और भी काफी कुछ करना है, आप लोग फटाफट खत्म करो। नाउ नेक्स्ट देखो। सो अब देखो, डेंसिटी निकालने का देखो बहुत ही सिंपल सही तरीका है। आई गिव यू वन क्वेश्चन, ये वाला आप खुद से ही ट्राई करो। ठीक है, ट्राई दिस बाय योरसेल्फ। व्हाट इज द डेंसिटी, बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ what is the density of a metal crystal, if it crystallizes, in SC। ठीक है, इन SC का मतलब if it crystallizes in simple cubic। ओके, देखो आपको समझ में आएगा ये डेटा आपको ऐसे क्यों दिया रहता है। इन सिंपल क्यूबिक with lattice constant equal to 2 angstrom। ठीक है, equal to 2 angstrom given molecular mass is equal to let's say 64 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक बार आप ये वाला खुद से सॉल्व करो, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, आप एक बार ये वाला खुद से सॉल्व करो। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, कि डेंसिटी जो है, चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी भी वाटर का डेंसिटी पूछा जाए, तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है बताओ। वाटर का डेंसिटी इज, करेक्ट, 1 ग्राम पर ml आप बोलते हो, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप बोलते हो ना। द यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर भी आप यूनिट जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही रखोगे। ओके,
बस जस्ट समथिंग आई टोल्ड यू, यूल अंडरस्टैंड व्हाई आई मेंशन दिस। अभी के लिए आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अ मेटल, what is the density of a metal crystal if it crystallizes, if it crystallizes in simple cubic with lattice constant 2 angstrom, given molecular mass is equal to 64? What is the density of a metal crystal if it crystallizes in simple cubic with lattice constant 2 angstrom? बताओ यहाँ पे lattice constant का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लैटिस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? करेक्ट, लैटिस कांस्टेंट जो है वो आपका ऑब्वियसली एज लेंथ ही होगा। ओके, लैटिस कांस्टेंट हियर इज एज लेंथ। नाउ ये वाला आप खुद से सॉल्व करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मैंने जितना हो सके उतना सिंपल डेटा दिया है। ओके, सो आई हैव वन आंसर 0.13 ग्राम पर सीसी। ठीक है, आई हैव वन आंसर। एनीबॉडी एल्स? पॉइंट 132, ठीक है, एक ही बात है। ओके, सो आई गेस सबका आंसर जो है वो आसपास ही आ रहा है। देखो, सो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपका सिग्मा जो है, यहाँ पे आपका डेंसिटी जो है वो क्या आएगा? Z इंटू मोलिकुलर मास। अच्छा, वी हैव वन मोर आंसर 13.33। ओके, Z इंटू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई आपका क्या आएगा? देखो, अवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। देखो हमारे पास यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन है। Z का वैल्यू क्या आएगा बताओ? Z का वैल्यू क्या आएगा? करेक्ट, Z का वैल्यू 1 आएगा, तभी आपको यहाँ पे सिंपल क्यूबिक जो है वो दिया हुआ है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास आपको यहाँ पे दिया हुआ है 64, यू पुट इट एज इट इज, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑब्वियसली जब आप एग्जाम में लिख रहे हो, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो, यू शुड राइट इट प्रॉपर्ली 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बट ऑब्वियसली जब आप कैलकुलेशन करोगे आप यहाँ पे 6 ही लोगे। ओके, मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब, दैट इज 2 एंगस्ट्रॉम। नाउ अब आप ध्यान दो, सो 2 एंगस्ट्रॉम यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर आएगा। बट मुझे आंसर किस में चाहिए? मुझे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। तो यानी कि ये जो मीटर है, ये जो मीटर है, मेरे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर की जगह 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस हाउ मच आ जाएगा सेंटीमीटर के टर्म्स में? करेक्ट, यहाँ पे सिर्फ मैं इसको चेंज कर देता हूँ, दैट इज यहाँ पे आपका रहेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -8, एंड ये जो है ये आपका आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ यू मेक दिस क्यूब। बस इसके आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो ये देखो आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 8 बाई, ये आपका आएगा 8/6 इंटू 10। देखो एक बार चेक करो, -1, ये आपका आया 8, 8, 8, 64, 8/6। देखो
तो ये आपका तो 13.33 आ रहा है, फिर 13.3 आ रहा है फिर। ठीक है, चेक करो ग्राम पर सीसी, चेक करो। क्या अब ये आप सभी को समझ में आया? Was this too difficult? ओके, ये वाला सभी ने कंप्लीट कर लिया। शुड वी ट्राई अनदर क्वेश्चन? शुड वी ट्राई अनदर क्वेश्चन? कंप्लीट कर लिया? ऑब्वियसली यू हैव टू ऑलवेज लुक एट योर ऑप्शंस। आपके ऑप्शंस जो है वो इन जनरल ग्राम पर सीसी नहीं होंगे, बट अगर आपके ऑप्शंस जो है वो मीटर क्यूब में है, ऑब्वियसली देन फाइंड आउट इन मीटर क्यूब। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। ठीक है, अनदर एग्जांपल, ये वाला भी आपको खुद से ही करना है। सो अ मेटल ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, बताओ क्या मॉलिक्यूलर मास चाहिए? कुछ बहुत ही डिफिकल्ट सा मॉलिक्यूलर मास बताओ। आप कैलकुलेशन आपको ही करना है तो आप सोच के बोलो। ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर मास 36 लेते हैं। 36 काफी सारी चीजों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर मास 36 crystallizes crystallizes in crystallizes in, बताओ बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड? चलो ठीक है, हम फेस सेंटर्ड लेते हैं। क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी। ठीक है, नाउ ध्यान दो, कई बार आप एफसीसी पढ़ोगे या हो सकता है कई बार आप सीसीपी पढ़ोगे। एफसीसी और सीसीपी बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। मैं आपको सीसीपी का फुल फॉर्म बता रहा हूं, बट एफसीसी और सीसीपी बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। ओके, क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी और सीसीपी। द रेडियस the radius of metal atom the radius of metal atom is 1.414 angstrom. Find density. निकालो। ओके, सो एफसीसी या सीसीपी। सो एफसीसी तो आपको पता ही है, एफसीसी इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सीसीपी इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दोनों का मतलब जो है एग्जैक्टली सेम ही है। एफसीसी और सीसीपी दोनों एग्जैक्टली सेम ही है, लिख लो आप ये चीज। एफसीसी इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सीसीपी इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। ये वाला अब आप ट्राई करो। So we have one answer, 3.7. ठीक है, 3.75 चलो इसको ले लेते हैं। Another answer we have 3.5. Okay, let's see. आपको यहाँ पे कुछ
सॉलिड स्टेट में इन पर्टिकुलर आपको समझना है कि कुछ वैल्यूज देने का जो है रीजन होता है, जैसे कि यहां पर आपको 1.414 देने का रीजन क्या हुआ बताओ। करेक्ट, यहाँ पे आपको 1.414 देने का रीजन जो है दैट इज बिकॉज इट इज रूट 2। ओके, सो आपको कई बार ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चंस में कई बार डेटा ऐसे दिया जाएगा जो कि आपका मे बी रूट 2 या रूट 3 के मल्टीपल्स में हो, या उस चीज को आप वहां पे यूज कर सको। ठीक है, दिस इज इन पर्टिकुलर इन सॉलिड स्टेट, तो आप ध्यान में रखो। चेक करें, वी हैव अनदर आंसर 14.14। चेक करें। ओके, सो अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। ये लिख लिया, ये लिख लिया, हटा रहा हूं फिर मैं। डी तो आपको पता ही है, डी तो आपको हमेशा पता ही है। देखो, so density is equal to z into molecular mass divided by Avogadro number into a cube. All of them are very difficult. So obviously देखो आपका z का वैल्यू fcc बताओ क्या आएगा। z fcc जल्दी, 4 molecular mass 36 Avogadro number 6 into 10 to the power 23 into अब a। अब देखो मुझे a तो नहीं दिया हुआ है बट मुझे रेडियस दिया हुआ है, सो आई कैन राइट a इन टर्म्स ऑफ रेडियस। बताओ इन दिस केस a और रेडियस का क्या रिलेशन है। बताओ इन दिस केस ए एंड आर, एफसीसी दिया हुआ है, ए एंड आर का क्या रिलेशन आएगा। सो ए इज इक्वल टू 4r बाई रूट टू। अब यहाँ पे ये वाली यूज कर सकते हो, और ए इज इक्वल टू 2√2 इंटू आर। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, नाउ आर इटसेल्फ इज रूट 2। ठीक है, नाउ आर इटसेल्फ इज रूट 2, तो आपका ए का वैल्यू क्या आ गया, 4 एंगस्ट्रॉम आ गया। यस नो, तो आपका ए का वैल्यू जो है वो 4 एंगस्ट्रॉम आ गया। नाउ योर वर्क इज प्रैक्टिकली डन। सो 4 इंटू 10 टू द पावर, बताओ मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू लेना चाहिए सो दैट मेरा फाइनल आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आएगा। 10 टू द पावर क्या लेना चाहिए बताओ, करेक्ट, -8, ताकि मेरा फाइनल जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए। ओके, इसके अलावा तो और कुछ खास है नहीं। सो दिस इज 6। सो ये आपका आ जाएगा 24/64 इंटू 10 टू द पावर -1। सो अब इसके अलावा कुछ खास है नहीं। 16 60/16 जो भी आएगा 3.75, यस 3.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैंने आपको बोला सीसीपी, मैंने वहां पे फुल फॉर्म लिखा, सीसीपी इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो कंप्लीट हुआ गया, समझ में आया सभी को। एनीथिंग वेरी डिफिकल्ट, यस नो, सही है। ओके, सो फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, नाउ वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या हाउ 64, 4 का क्यूब कितना आएगा। ओके, सो लेट्स लुक एट वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन। 4 का क्यूब 24 आएगा। Let's look at one more type of question. Okay, so if the radius, if the radius of, yes, this is a big chapter. If the radius of a metal atom is 100 angstrom and it crystallizes, in cubic system, and it crystallizes in cubic system with, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एलसी लिख दिया, बट एलसी का मतलब होता है लैटिस कांस्टेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया बट दिस इज लैटिस कांस्टेंट। विथ लैटिस कांस्टेंट ये 100 है। ठीक है, दिस इज 100 where lattice constant is equal to, let's say, with lattice constant is equal to, let's say, 282.4 angstrom. Find the lattice system. Try करो।
ठीक है, देखो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। Yes, you are right. 282.8. Yes, you are right. Not 22.4, 282.8. मैं यहाँ पे वापस लिख दे रहा हूँ। बताओ, व्हाट इज द लैटिस सिस्टम? लैटिस सिस्टम का मतलब क्या है? आपको क्यूबिक तो बता दिया गया है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर्ड है। क्या आएगा ये बताओ। डजंट मैटर, आपको मॉलिक्यूलर मास की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ए बाई आर का वेरी सिंपली वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं ए बाई आर का वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा, दिस इज 282.8 बाई 100। तो ये एसेंशियली क्या रहा है, 2.828। एंड जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि इन पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट में आपको कई बार √2 √3 का जो है वैल्यूज के टर्म्स में दिया रहता है। तो ये क्या आएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू, करेक्ट, सो दिस इज इक्वल टू 2 √2। अब a इज इक्वल टू 2 √2 r, ये बताओ कौन से वाले में आता है? ये आपका आता है फेस सेंटर्ड में। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? कॉपी कर लो। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? द एज लेंथ ऑफ अ मेटल क्रिस्टल, ब्रैकेट में बीसीसी, बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। The edge length of a metal crystal is 173.2 angstrom. Find radius of metal atom. Very difficult. क्या आंसर आया बताओ। बहुत डिफिकल्ट सवाल, क्या आंसर आया? सो अगेन एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं। पहली बात तो इस चीज को हम आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, दिस इज एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। एनीवेज देखो,
सो यहाँ पे आपको 173.2 क्यों दिया हुआ है बताओ? यहाँ पे आपको 173.2 क्यों दिया हुआ है? करेक्ट, बिकॉज दिस इज 100√3। ठीक है, अब तो आपका ये काम ही, अब तो ये सिंपल हो गया। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि a√3 इज इक्वल टू 4r हो ही गया अब ये। सो 100√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 4r। सो आपका r जो है वो आ जाएगा 75 एंगस्ट्रॉम। फुल फॉर्म पूछते तो नहीं है, बट कम से कम आप गलत तो मत बताओ। देखो सही हुआ। डन। Okay, so now we are going to do a slightly different type of question. Now, generally आपको solid state में जो मैं आपको next करवाने वाला हूँ, generally आपको यही type के questions आते हैं. Now, this is very important, so everybody pay attention. ठीक है, let's take a very simple example. Let's take a very simple example. ठीक है, atoms X occupy. Question आप लोग फटाफट पहले copy करो. Atoms X occupy corners and Y occupy all face centers. Atoms X occupy corners and Y occupies, अब वो हो गया, and Y occupies all face centers. Find out formula of crystal. पहले आप लोग फटाफट क्वेश्चन कॉपी करो. क्वेश्चन कॉपी कर लिया? बता रहा हूँ, क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले. ठीक है, चलो लेट्स टेक ऑप्शंस ताकि आपको और भी इजी रहेगा. XY, X2Y, XY3, X3Y. ठीक है, चलो अब आपको मे बी समझ में आ जाए. अभी रुक जाओ, अभी पहले मुझे ये वाला कंप्लीट करने दो. नाउ देखो, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करते हो? दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो? वेरी सिंपली, आप पहले एक जगह x लिखो, एक जगह y लिखो. ठीक है ना, अब आप सबसे पहले ये बताओ x क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, बताओ. x क्या क्या पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहा है? करेक्ट, x इज ऑक्यूपाइंग कॉर्नर्स. कितने कॉर्नर्स होते हैं बताओ? 8 कॉर्नर्स हुए. हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना? करेक्ट, हर एक का कंट्रीब्यूशन हुआ 1/8. ओके, तो मेरे पास x के इफेक्टिवली कितने एटम्स हुए बताओ? मेरे पास x के इफेक्टिव हुए 1 एटम्स. नाउ y क्या ऑक्यूपाई कर रहा है बताओ? y क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? नाउ यहाँ पे आपको एक चीज क्या इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि यहाँ पे y जो है वो कॉर्नर्स पे नहीं है, कॉर्नर्स पे जो है x है. ओके, y जो है वो सिर्फ फेस सेंटर्स पे है. तो कितने फेस सेंटर्स होते हैं बताओ? करेक्ट, 6 फेस सेंटर होते हैं. हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना? हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ. तो मेरे पास y के इफेक्टिवली कितने एटम्स होंगे? y के इफेक्टिवली एटम्स होंगे 3. बस हो गया. सो x y, x का 1, y का 3, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया? XY3 आ गया. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट. कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल. ठीक है, x is occupying all corners, y is occupying all face centers, z is occupying body center. ठीक है, फाइंड आउट फॉर्मूला. x corners, y face centers, z body center. फाइंड आउट फॉर्मूला.
बताओ, बहुत ही डिफिकल्ट है। क्या आया बताओ। ठीक है, सो एक्स कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है, आई हैव 8 कॉर्नर्स, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। तो मेरे पास एक्स के एटम्स कितने हुए, एक्स के एटम्स मेरे पास एक हुए। वाई इज ऑक्यूपाइंग फेस सेंटर्स, तो यानी कि वाई जो है मेरे पास 6 होंगे, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होगा, तो मेरे पास वाई कितना आएगा, 3 आएगा। जेड जो है बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर कितना होगा, एक होगा, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 1। इसका तो कंट्रीब्यूशन जो है वो 1 आएगा, तो यानी कि मेरे पास z इफेक्टिवली कितना है, 1 है, हो गया बस। सो x y3 एंड z, देखो चेक करो, वाज इट वेरी डिफिकल्ट। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट्स से x इज ऑक्यूपाइंग एज सेंटर्स, चलो इसको पूरा लिखता हूं, x इज ऑक्यूपाइंग एज सेंटर्स, y is occupying face centers, z is z is forming bcc। नाउ अब यहां पे देखो डिफरेंस क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब मैं एफसीसी लिखता हूं वर्सेस जब मैं सिर्फ एफसी लिखता हूं, ठीक है, या जब मैं बीसीसी लिखता हूं वर्सेस जब मैं सिर्फ बीसी लिखता हूं, ठीक है। तो जब आप एफसीसी लिखते हो, एवरीबॉडी पे अटेंशन, करेक्ट, जब आप एफसीसी लिखते हो, जब आप एफसीसी लिखते हो इसका मतलब क्या है, फेस सेंटर्स प्लस कॉर्नर्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एफसीसी का मतलब क्या हुआ, फेस सेंटर्स प्लस कॉर्नर्स, ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, एफसी प्लस सी, ठीक है। बट जब मैं सिर्फ एफसी लिख रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, ओनली फेस सेंटर्स। ओके, सेम चीज यहां पे, जब मैंने यहां पे सिर्फ बॉडी सेंटर लिखा है तो इसका मतलब दिस इज ओनली बॉडी सेंटर, बट जब मैंने बीसीसी लिखा है इसका मतलब यहां पे होगा बॉडी सेंटर प्लस कॉर्नर्स। क्या ये आप सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो एंड ये वाला क्वेश्चन फिर आप सॉल्व करो। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड एंड कॉर्नर्स, ठीक है, एफसीसी इज फेस सेंटर्ड एंड कॉर्नर्स, एफसी इज ओनली फेस सेंटर। सेम चीज विद बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड एंड कॉर्नर, और अगर आपने सिर्फ बॉडी सेंटर लिखा है तो वो सिर्फ बॉडी सेंटर ही ऑक्यूपाई कर रहा है, कॉर्नर जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल दिया है, बताओ यहाँ पे कॉर्नर्स में क्या होगा। करेक्ट, कॉर्नर्स में जो है जेड होगा। ठीक है, मैंने आपको एज सेंटर तो बता ही दिया है। एजेस मैंने आपको बताया था, एजेस जो है वो कितनों में शेड होता है, बताओ, ये एज जो है ये कितनों में शेड होता है, करेक्ट, 4 में शेड होता है, बस सेम प्रिंसिपल। देखो, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नाउ ध्यान दो, बताओ मेरे पास एजेस कितने होते हैं, हाउ मेनी एजेस आर प्रेजेंट इन अ क्यूब, करेक्ट, 12। हर एक एज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, हर एक एज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, करेक्ट, 1/4। तो यहाँ पे देखो आपका कितना आ जाएगा, वेरी सिंपली आपके पास x जो है वो 3 आ जाएगा। नाउ y इज ऑक्यूपाइंग फेस सेंटर्स ओनली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ fc दिया हुआ है तो दिस इज ऑक्यूपाइंग फेस सेंटर्स ओनली। तो मेरे पास कितना, 6 फेस सेंटर, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ, तो ये कितना आ गया, ये आपका 3 आ गया। ओके, z इज फॉर्मिंग बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर भी है एंड कॉर्नर भी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बॉडी सेंटर भी है कॉर्नर भी है। तो बॉडी सेंटर कितना आएगा, 1/1 आएगा, प्लस कॉर्नर कितना आएगा, 8/1/8 आएगा, तो यहाँ पर कितना हुआ, आपका 2 हुआ। तो x3 y3 z2, देखो समझ में आया क्या सभी को? क्लियर टू एवरीवन? ओके,
Now, before we move ahead, we'll just clarify one thing. Now, ध्यान दो, देखो, करेक्ट, अगर आपका x3 y3 है तो आपका xy ही आएगा. Yes, I'm giving you. Okay, ध्यान दो. So now there are some terms called as face diagonal and body diagonal. Okay, now अगर जैसे जैसे सपोज करो अगर आप इस पॉइंट को ले रहे हो, ठीक है, एंड अगर आप इस पॉइंट को ले रहे हो, तो ये दोनों पॉइंट्स आप बताओ सेम फेस पे है या नहीं है. ये दोनों पॉइंट्स जो है वो सेम फेस पे है. करेक्ट, ये दो पॉइंट्स जो है वो सेम फेस पे है. तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं, तो इस लाइन को हम बोलेंगे फेस डायगोनल. ठीक है, अगर कोई भी दो ऑपोजिट पॉइंट्स जो है जो कि सेम फेस पे है तो उसको कनेक्ट करता हुआ लाइन जो है उसको हम बोलेंगे फेस डायगोनल. ठीक है, देखो ध्यान दो, इस चीज को आप बोलोगे एज, इस चीज को आप बोलोगे फेस डायगोनल. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है. नाउ अगर दो एकदम ऑपोजिट पॉइंट्स है, जैसे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता हुआ लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? इसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप लोग ये चीज लिख लो. दिस इज बॉडी डायगोनल. जो दो एकदम ऑपोजिट पॉइंट है उनको कनेक्ट करता हुआ लाइन जो है उसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल. तो करेक्ट, डायगोनल ऑफ अ क्यूब. या फिर अगर आपका ये पॉइंट हुआ एंड ये पॉइंट हुआ, एकदम ऑपोजिट पॉइंट्स है, तो इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ लाइन जो है वो भी आपका क्या आएगा? वो भी आपका आएगा बॉडी डायगोनल. क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ये सभी को समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली ऐसे 4 केसेस होंगे. ठीक है, देयर विल बी 4 बॉडी डायगोनल्स. नाउ वन मोर थिंग. कोई भी एक फेस को, ठीक है, जैसे कि ये फेस हो गया. नाउ दिस इज अ प्लेन. कोई भी एक फेस जो है वो तो एक प्लेन हो गया, बिकॉज दिस इज अ प्लेनर सरफेस. ठीक है, आप इस चीज को प्लेन बोल सकते हो. ठीक है, या फिर आप इस चीज को प्लेन बोल सकते हो. एनी ऑफ द फेसेस कैन बी अ प्लेन. यस, नो, यस, नो. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग. यहां से लेके, देखो ध्यान दो, यहां से लेके अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो ये क्या हुआ? ये एज सेंटर टू एज सेंटर हुआ. ये सुनो, ठीक है, ये जो है ये इस एज का सेंटर हुआ एंड ये जो है ये इस एज का सेंटर हुआ. यस, नो. ठीक है, हालांकि इसको हम एज डायगोनल ऐसा कुछ तो नहीं बोलते हैं, बस आप ध्यान में रखो कि आप एज सेंटर टू ऑपोजिट एज सेंटर भी कनेक्ट कर सकते हो. मतलब दे कैन बी वेरियस लाइंस व्हिच कैन बी ड्रॉन. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन आल्सो ड्रॉ प्लेन्स. प्लेन्स का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान दो, मैं चाहूं तो इस क्यूब को एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड कर सकता हूं बाय ड्रॉइंग अ प्लेन व्हिच इज लाइक दिस. यस और नो? ये प्लेन जो है, ये प्लेन जो है वो इस क्यूब को एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड करेगा. यस, नो. ठीक है, ऐसे ऑब्वियसली मैं 3 प्लेन बना सकता हूं. एक हो सकता है जो कि टॉप एंड बॉटम को कनेक्ट कर रहा हो. ठीक है, एक और हो सकता है, एक और हो सकता है जो कि मैं लेफ्ट एंड राइट को कनेक्ट कर रहा हूं. यस और नो? ठीक है, कि मैंने यहां से इसको स्लाइस किया. एंड एक और क्या हो सकता है कि मैं फ्रंट एंड बैक को ब्रेक कर रहा हूं. बेसिकली आपका एक्स वाई जेड एक्सिस. ठीक है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन. यस और नो? ठीक है, करेक्ट, करेक्ट. हम डायगोनली भी कर सकते हैं, मैं भी आपको पहले स्ट्रेट बता रहा हूँ. ठीक है, तो आप इसको एक्स वाई, एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन, तीनों प्लेन से आप ब्रेक कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो डिवाइड द क्यूब डायगनली. ठीक है, डायगनली का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा प्लेन देखो, एक सेकेंड, इसको कैसे ड्रॉ किया जाए? ओके, इसका ड्राइंग तो बड़ा गंदा आएगा, तो इसको कैसे ड्रॉ किया जाए? ओके, ऐसे समझो आप, ये क्यूब है. ठीक है, ये आप क्यूब को सामने से देख रहे हो. ठीक है, ये आप क्यूब को सामने से देख रहे हो, तो ये प्लेन जो है ये ऐसे है. ठीक है, कि इसने इस क्यूब को इस तरह से डिवाइड किया है.
ओके, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीस, ठीक है। अब देखो इसका काम कहाँ पे आता है, एनसीईआरटी से पिक्चर। ओके, लेट्स सी अगर एनसीईआरटी में इसका पिक्चर है तो, हालांकि मेरे को लगता तो नहीं है, बट लेट्स सी। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। चलो ठीक है, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ ये सारे डायग्राम्स आपको रफली समझ में आ गया ना? ओके, सो नाउ देखो आप एक दो क्वेश्चन करो, अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ ध्यान दो, ध्यान दो। एग्जाम्पल, x is occupying corners, ध्यान दो, y is occupying face centers, ठीक है। x is occupying corners, y is occupying face centers. If all the atoms, if all the atoms along a body diagonal, along a body diagonal are removed, are removed, what is the new formula? ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो, पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो। लिख ले सभी ने? along one body diagonal, along, हाँ any one body diagonal। नाउ ध्यान दो, सो x जो है, x जो है वो सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बताओ कितने कॉर्नर्स होंगे? 8 कॉर्नर्स है, ठीक है। y जो है, ध्यान दो, वो सारे फेस सेंटर्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आपके पास 6 फेस सेंटर है। नाउ ध्यान दो, अब एक बॉडी डायगोनल, ध्यान दो, एक बॉडी डायगोनल जो है वो कितने कॉर्नर्स को अफेक्ट करेगा बताओ? एक बॉडी डायगोनल जो है वो 2 कॉर्नर्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि अब x जो है वो इफेक्टिवली 8 कॉर्नर के जगह कितने कॉर्नर्स में है बताओ? करेक्ट। अब मेरे पास x जो है वो 8 कॉर्नर के जगह 6 कॉर्नर में ही है, ठीक है। नाउ बताओ अगेन, एक बॉडी डायगोनल कितने फेस सेंटर्स को अफेक्ट करेगा? एक बॉडी डायगोनल कितने फेस सेंटर से पास करेगा? 0 फेस सेंटर से पास करेगा। एक बॉडी डायगोनल तो कोई भी फेस सेंटर से पास नहीं करेगा, तो मेरा फेस सेंटर तो एज इट इज 6 का 6 फेस सेंटर ही रहेगा, यस और नो? ठीक है, तो फेस सेंटर जो है वो मेरा 6 का 6 ही रहेगा ना। हर एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी 1/8, हर एक फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी 1/2। तो ये देखो, ये मेरा कितना आ रहा है? ये मेरा 3/4 आ रहा है, एंड ये मेरा 3 आ रहा है। ध्यान दो, ये आएगा। Obviously this is not yet complete, so x is 3/4, y is 3। या अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से सॉल्व करूं तो देखो मेरा क्या आ जाएगा, वेरी सिंपली x/4। देखो चेक करो, ऑब्वियसली दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, तो आपको हो सकता है इसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो, बट देखो आपको नेक्स्ट इसके आगे से जो है पूरा समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। एंड आप चाहे मेंस लेवल एग्जाम दो, चाहे आप एडवांस्ड लेवल एग्जाम दो, दिस इज बाय फार द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज मोस्ट कॉमनली गिवन। 6 × 1/8 देखो कहां से आया, आपके पास 8 कॉर्नर थे, बट बॉडी डायगोनल जिस जिस चीज को टच कर रहा है वहां से आपको एटम्स हटा देना है। तो बॉडी डायगोनल ने एक कॉर्नर एंड एक और कॉर्नर, 2 कॉर्नर को अफेक्ट किया,
तो अब मेरे पास 8 कॉर्नर के जगह 6 कॉर्नर ही बचे, तो 6 इंटू 1/8, क्योंकि हर एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 आता है। क्लियर? ओके, लेट्स टेक वन मोर। देखो अब आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा। देखो, सो x इज ऑक्यूपाइंग, ओके, सो लेट्स से x इज ऑक्यूपाइंग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ध्यान दो यहाँ पे मैंने BCC लिखा है। y is occupying face centers, okay, all atoms all atoms along one face diagonal are removed find new formula। खुद से करो, अब ये वाला आप खुद से कर सकते हो। अब ये वाला आप खुद से आराम से कर सकते हो, करो। हो गया? क्या क्या ऑप्शन है बताओ। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। सो वन ऑप्शन इज x7 y10, ओके, एनीबॉडी एल्स? एक है xy2, एक है xy, एंड लास्ट वाला ऑप्शन आप सभी को पता ही है। ओके, लेट्स चेक, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो देखो, आपका x मैंने यहाँ पे दिया है BCC। अगर x मैंने आपको यहाँ पे BCC दिया है, यानी कि x जो है वो कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर ऑक्यूपाई कर रहा है, whereas y जो है वो सिर्फ आपका फेस सेंटर ही ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, नाउ x आइडियली आपका कितना होता है? 8 कॉर्नर्स एंड 1 बॉडी सेंटर होता एंड y जो है वो आपका 6 फेस सेंटर होता। ओके, नाउ ऑल एटम्स अलोंग वन फेस डायगोनल आर रिमूव। मैं यहाँ पे देखो ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर आप कोई भी एक फेस डायगोनल बना रहे हो, तो बताओ एक फेस डायगोनल जो है वो कौन कौन से पॉइंट्स से पास करेगा? एक फेस डायगोनल जो है वो कौन कौन से पॉइंट से पास करेगा बताओ। करेक्ट, इट विल अफेक्ट टू कॉर्नर्स, इट विल अफेक्ट टू कॉर्नर्स एंड वन फेस सेंटर। तो यानी कि देखो, मेरे पास अब कॉर्नर 8 के जगह अब कितने हो गए? अब मेरे पास एक्स जो है वो 8 के जगह अब 6 कॉर्नर हो गया। बॉडी सेंटर रिमेन्स एज इट इज, ठीक है, बॉडी सेंटर रिमेन्स एज इट इज। फेस सेंटर जो है वो मेरा 6 के जगह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बाकी सब एग्जैक्टली सेम। सो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका रहेगा 6 × 1/8 प्लस 1 × 1 प्लस 5 × 1/2। देखो ऐसा आया क्या? ठीक है, तो देखो इफेक्टिवली अब ये चीज मेरा क्या आ जा रहा है। सो x इज इक्वल टू, ये आपका आया, ये आपका आया 7/4, y 5/2। देखो ये आया। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस। अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो देखो आपका क्या आएगा, x7/10। देखो चेक करो।
समझ में आ रहा है सभी को? ओके, लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन. एक्स को क्या करवाना है बताओ. एक्स इज ऑक्यूपाइंग व्हाट, बताओ बोलो. एक्स को क्या ऑक्यूपाई करवाना है? एफसीसी. चलो ठीक है, एक्स इज फॉर्मिंग एफसीसी. वाई को हम डाल देते हैं एज सेंटर पे. वाई को हम डाल देते हैं एज सेंटर पे. जेड को हम डाल देते हैं बॉडी सेंटर पे. ठीक है, जेड को हम डाल देते हैं बॉडी सेंटर पे. नाउ all the atoms all the atoms along a face, sorry, a face is removed. Yeah, all the atoms along a face are removed. Find formula. करो. ठीक है, you can always draw to help you out. कोई भी आप एक फेस अफेक्ट कर दो. ठीक है, जैसे कि सपोज आपने ये वाला फेस अफेक्ट कर दिया. देखो क्या क्या चीज वो अफेक्ट करेगा. आप यहाँ पे इसका ऐसे लिखो. एक्स कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, वाई एज सेंटर, जेड बॉडी सेंटर. खुद से करो. जब हो जाए तो गिव मी ऑप्शंस. along a face, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे डायगोनल नहीं है, यहाँ पे प्लेन है. along a face. So I have first option x, y, 3, z. चलो ठीक है. Others. x3, y2, z. x3, y2, z. One more option. x3, yz. x3, yz. देखते हैं. Let others finish. चेक करें. चेक करें. ओके, लेट्स सी. अगेन आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आराम आराम से सॉल्व करो, जल्दी मत करो. सो एक्स जो है कॉर्नर में 8, फेस सेंटर में 6, वाई जो है एज सेंटर में 12 एंड जेड जो है बॉडी सेंटर में 1. ठीक है ना. आपने एक फेस पे जितने भी एटम्स हैं सबके सब रिमूव कर दिए. ठीक है, लेट्स लुक एट इट वन बाय वन. ओके नाउ, अगर आपने सिर्फ ये फेस पे जितने भी एटम्स सारे रिमूव किए तो बताओ कितने कॉर्नर्स अफेक्ट होंगे. करेक्ट, 4 कॉर्नर्स अफेक्ट होंगे. ठीक है, ऑल ऑफ दीज 4 कॉर्नर्स विल गेट अफेक्टेड. तो मेरे पास बताओ फाइनली कॉर्नर्स कितने बचे. करेक्ट, मेरे पास 4 बचे. ठीक है ना. अलॉन्ग अगेन एक फेस है तो बताओ कितने फेसेस अफेक्ट हुए या कितने फेस सेंटर्स अफेक्ट हुए. करेक्ट, एक फेस सेंटर अफेक्ट हुआ तो अब और कितना बचेगा, 5 बचेगा. ठीक है नाउ नेक्स्ट, कितने एजेस अफेक्ट हुए. करेक्ट, 4. 1, 2, 3 एंड 4. 4 एजेस अफेक्ट होंगे. मेरे पास फाइनली कितना बचा बताओ. 8 बचा. बॉडी सेंटर कितना अफेक्ट होगा. करेक्ट, 0 अफेक्ट होगा. तो मेरे पास फाइनली कितना बचा, मेरे पास 1 बचा. ठीक है, नाउ वी कैन सिंपली ऐड अप देयर कंट्रीब्यूशन. तो ये इंटू 1/8, ये इंटू 1/2, ये इंटू 8 इंटू बताओ. करेक्ट, 1/4 और ये इंटू 1. ठीक है, नाउ दिस इज सिंपल. सो ये आपका आएगा 0.5 प्लस 2.5, ये आपका 3 आ गया. दिस इज 2 आएगा ना. हाँ, ये 2 आएगा और ये 1 हुआ. तो x3, y2, z. देखो, चेक करो. How many of you got it right? चलो, वेरी गुड. एज वाला में देखो क्या है. एक फेस अफेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली ये 4 एजेस अफेक्ट होंगे.
ठीक है, तो 4 एजेस अफेक्ट हुए। रुको, विल डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट भी करते हैं। ओके, नाउ लेट्स से एक्स कॉर्नर, वाई फेस सेंटर, जेड बॉडी सेंटर, डब्ल्यू एज सेंटर। ठीक है, फटाफट कॉपी किया करो। कॉपी कर लिया? Okay, now all the atoms along a diagonal plane are removed. Find formula. ठीक है, डायगोनल प्लेन का मतलब क्या हुआ देखो, जैसा मैंने आपको उस टाइम पे बताया था। ठीक है, इस चीज के अलोंग जितने भी एटम्स है वो सारे के सारे आपने रिमूव कर दिए। ठीक है, ट्राई करो। अब इससे ज्यादा अच्छी तो मेरी डायग्राम नहीं है। हो गया? अरे, लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज एक्स वाई 3w5। ओके, ऑप्शन बी, ये तो इतना छोटा छोटा भी मत लिखो भाई, एक्स वाई 6w10। ऑप्शन सी, एक्स वाई 4w5, and option D is obviously not. चेक करें, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। एक्स जो है वो कॉर्नर में है, वाई जो है फेस सेंटर, जेड जो है वो बॉडी सेंटर, डब्ल्यू जो है वो एज सेंटर। तो 8 कॉर्नर्स, 6 फेस सेंटर्स, 1 बॉडी सेंटर, 12 एज सेंटर्स। चेक करें। ओके, लेट्स चेक। बताओ ये प्लेन कितने कॉर्नर्स को अफेक्ट करेगा?
जल्दी जल्दी, ये प्लेन विल अफेक्ट हाउ मेनी कॉर्नर्स? करेक्ट, 4 कॉर्नर्स, 1 2, ये चेंज कर देता हूं मैं. ओके, सो दिस विल अफेक्ट हाउ मेनी कॉर्नर्स? 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर. 4 कॉर्नर अफेक्ट करेगा. तो मेरे पास फाइनली यहाँ पे कितने बचे? मेरे पास यहाँ पे बचे 4 कॉर्नर्स. ठीक है, बताओ कितने फेस सेंटर को अफेक्ट करेगा? हाँ, 2 फेस सेंटर को अफेक्ट करेगा. ठीक है, एक ये वाला फेस सेंटर हुआ. ठीक है, एंड इसके ऑपोजिट में जो फेस सेंटर है. ठीक है, ये 2 फेस सेंटर को अफेक्ट करेगा. तो यहाँ पे आपके पास इफेक्टिवली कितना बचा? यू नाउ हैव 4 फेस सेंटर्स. ठीक है, कितने बॉडी सेंटर को अफेक्ट करेगा बताओ? ऑब्वियसली दिस विल अफेक्ट द बॉडी सेंटर. तो आपका बॉडी सेंटर जो है वो क्या हो गया? अब तो वो 0 हो गया. ठीक है, एंड हाउ मेनी एज सेंटर्स विल इट अफेक्ट? करेक्ट, एक तो वो इस एज सेंटर को अफेक्ट करेगा, एक और वो इस एज सेंटर को अफेक्ट करेगा. सो हाउ मेनी डू आई हैव लेफ्ट? आई हैव लेफ्ट 10. यस, नो? ठीक है, बस अब तो हो गया. सो कॉर्नर्स इनटू 1/8, फेस सेंटर्स इनटू 1/2, बॉडी सेंटर तो है नहीं, डजंट मैटर, एंड एज सेंटर इनटू 1/4. तो देखो मेरे यहाँ पे क्या आ रहा है? ये आ रहा है 0.5, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 2.5. क्लियरली इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 2 तो मेरा काम हो जाएगा. सो x3, सॉरी x3 कहाँ से आ गया? x y4 z तो आपका है ही नहीं, एंड आपका आ जाएगा w5. देखो चेक करो, x y4 w5 चेक करो. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बॉडी सेंटर्ड वाला तो पूरा निकल गया. तो बॉडी सेंटर जो है वो अपने आप 0 आ जाएगा. डन. ठीक है, सो विल स्टॉप राइट हियर. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.